Hello students, this video is in continuation with the chapter life processes. We have already done the digestive system, that is nutrition, and we have also done the respiration. In this video we will be talking about the transportation, and all of you know that transportation means how the materials are transported from one part of the organism to the other part of the organism, and we will be tackling the transportation in humans as well as in the plants. As you all know that plants के अंदर जो transportation medium channels हैं, they are xylem and phloem. We will discuss about them at the end of the topic, but now we will be talking about the transportation of humans. So humans के अंदर जो transportation है उसको हम circulatory system के अंदर पढ़ेंगे. So transportation in humans is constituted by circulatory system, and circulatory system is composed of certain elements. First of all, the central organ of the circulatory system in humans is heart. Then we have blood vessels, we have blood and lymph. ये ट्रांसपोर्ट मीडियम्स हैं, ये चैनल्स हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, और हार्ट जो है वो आपका पंप है जो कि फोर्स के साथ में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है. अगर हम सबसे पहले ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं दे आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स. वी हैव आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. And you are well aware of the fact कि जो arteries होती हैं they carry oxygenated blood, and veins जो हैं they carry deoxygenated blood. But now in 10th class things are going to be a little different in the sense that definitions are going to be more refined and more precise. All arteries do not carry the deoxygenated blood. All arteries do not carry oxygenated blood. Some arteries they carry deoxygenated blood also, and this will become very clear to you when we do the diagram of the heart. And then there are certain veins which carry oxygenated blood also. So per se the arteries are defined as the vessels which carry blood away from heart. So arteries carry blood away from heart. It is not, most of them carry oxygenated blood. Arteries have thick walls. Arteries do not have valves in them. And countering them, the veins they carry blood towards the heart. Most of them carry deoxygenated blood mostly. They have relatively thin walls and they have valves in them. We will be discussing them one by one. So अगर हम इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हार्ट के डायग्राम के बारे में बात करेंगे. अगर हम हार्ट का डायग्राम बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द हार्ट डायग्राम बनाऊंगी विच विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर टू यू, एंड यू कैन यूज़ दिस डायग्राम ऑफ हार्ट इन योर आंसर शीट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड योर टीचर्स अलाउ इट टू बी डन. अगर हम हार्ट की आउटर वॉल को बनाएं तो हार्ट को बनाने के लिए तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है. पहली बात तो ये कि ऊपर का हिस्सा छोटा होगा, नीचे का हिस्सा लंबा होगा. फिर हम बनाएंगे हार्ट की आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज पेरिकार्डियम.
Pericardium is thin. The space between the pericardium is filled with pericardial fluid, and this space is very thin in the auricle section या atrium section. और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं ये जो स्पेस है ये बड़ी होती जाती है, या थिक, ये वॉल जो है इसके बीच की जो फ्लूइड स्पेस है वो थिक होती जाती है. इसका भी एक रीज़न है एंड वी विल डू दिस रीज़न. सो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हार्ट का डायग्राम बनाने के टाइम पे जो चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखनी है. पहली ये कि ऊपर का सेक्शन छोटा और नीचे का सेक्शन रिलेटिवली बड़ा. हार्ट यहाँ से थोड़ा सा गोल बनाएंगे. ऊपर जो आपका स्पेस है बिटवीन द टू वॉल्स ये कम होगी और नीचे आते आते ये स्पेस जो है वो आपने बड़ी कर देनी है. अब इसको आगे मैं और ज़्यादा मतलब डिटेल्स में बनाऊंगी. ये अभी पहले आपको इसकी आउटलाइन बनाना सीखना पड़ेगा. सो अगर मैं दोबारा से बनाऊं, अब मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगी बिकॉज आई वांट टू लेबल द थिंग्स. The normal size of the heart of a person is that of its closed fist. अगर आप अपनी मुट्ठी को इस तरीके से बंद करें तो जितना आपकी मुट्ठी का साइज़ होता है, इनफैक्ट ऐसे अगर आप देखते हो तो शेप भी कुछ इस प्रकार से ही आपकी होगी. आपका जो हार्ट है इट इज़ स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट कैविटी and it is protected by the rib cage, and on the side of heart there are lungs. और आपकी जो हार्ट की आउटर वॉल होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द पेरिकार्डियम. एंड ये जो स्पेस होती है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है. दिस फ्लूइड इज़ कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा. और ये अगर आप गिरते हो तो आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है. और ये लिक्विड जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब करके आपके हार्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है. तो अगर ये हम एक आउटलाइन ले लें, अब अगर आप ये वाला जो हिस्सा है दिस इज़ एक्चुअली द राइट साइड ऑफ योर हार्ट. सो दिस इज़ कॉल्ड एज राइट एट्रियम. अब ए जो है वो एट्रियम भी है और कई जगह पे ऑरिकल्स भी है. पुरानी टर्मिनोलॉजी ऑरिकल्स थी, आजकल हम इसको एट्रियम बोलते हैं. सो यू कैन यूज़ आइदर ऑफ द टू. इट कैन बी एट्रियम एज वेल एज ऑरिकल्स. इसके नीचे है राइट वेंट्रिकल. ये है आपका लेफ़्ट ऑरिकल और ये है आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल. अब इसको थोड़ा सा और मतलब आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाने के लिए आई विल बी यूजिंग टू कलर्स. One will be red and the other will be blue. In blue, I will use blue color where the deoxygenated blood comes, and I will be using slightly reddish color where oxygenated blood comes. तो ये जहाँ जहाँ ब्लू लाइन है इसका मतलब है ये जो हिस्सा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अगर आप अपने डायग्राम्स बनाते हो यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर्ड पेंसिल्स. तो मैं सिर्फ इसको सिंपल रखने के लिए बता रही हूँ कि ये जो आपकी ये वाला जो हिस्सा है आपके ब्लड हार्ट का, दिस इज़ फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दैट इज़ वाई आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस विद द ब्लू कलर. ये वॉल्स वगैरह कुछ नहीं है, मैं इसको पूरे को फिल करके आई डोंट वांट टू मेक इट अनटाइडी. सो सिर्फ मैं आउटलाइन या बाउंड्री को कलर करके आपको बता रही हूँ कि ये जो हिस्सा है ये सिर्फ ब्लू कलर का है. सो होल हार्ट इज़ फिल्ड विद this side of heart, right side of the heart is filled with the red with the blue or deoxygenated blood. अब पूरी बॉडी में से deoxygenated blood को इकट्ठा करके एक वेसल है which is called as inferior vena cava. और आपके हेड और शोल्डर रीजन से deoxygenated blood कैरी करके एक वेसल आती है which is called as superior vena cava. और ये दोनों ब्लड वेसल्स हार्ट के अंदर राइट ऑरिकल के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर करती हैं.
अब जब हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करना होता है तो क्या होता है कि हार्ट का ये जो ऑरिकल होता है बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होता है, जैसे एक स्पंज है, अगर वो रिलैक्स पोजीशन में है तो उसके अंदर आप लिक्विड भर सकते हो, ठीक है। तो हार्ट के राइट ऑरिकल के अंदर इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा फ्रॉम द लोअर एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और राइट ऑरिकल में डाल देती हैं। राइट ऑरिकल जब पूरा भर जाता है तो उसके बाद राइट ऑरिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल को जाने का रास्ता है एंड दिस सेक्शन इज guarded by the tricuspid valve. This is tricuspid valve. अब ये जो तुम्हारा TCV या tricuspid valve है, ये वन वे होता है, ये इस तरीके से होता है तो ब्लड ऊपर से नीचे को जा सकता है लेकिन नीचे से ऊपर को नहीं आ सकता। ये वन वे वॉल्व है जो ऊपर से नीचे को ब्लड आने देगा लेकिन नीचे से ऊपर को ब्लड नहीं आने देगा। उसके बाद जब पूरा राइट वेंट्रिकल ब्लड के साथ में फिल अप हो जाता है तो फिर राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, तो क्योंकि ऊपर से वॉल्व बंद हो जाते हैं तो राइट वेंट्रिकल के उधर से जो ब्लड है इट विल गो इनटू पल्मोनरी आर्टरी। मार्क माय वर्ड्स, इट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी इस तरीके से हार्ट के बाहर निकलती है और दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में जाएगी, दूसरी पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग के अंदर जाएगी और इसलिए क्योंकि ये लंग्स में जाती है इसलिए हम इसको पल्मोनरी बोलते हैं और क्योंकि ये इट इज़ कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपको अभी ही विजिबल हो गया है कि पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट फ्यू, तो एक्सेप्ट फ्यू के अंदर पल्मोनरी आर्टरी आती है। तो यहाँ आपने अभी तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ देखा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट फ्रॉम द बॉडी बाय द लोअर वीना कावा एंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय सुपीरियर वीना कावा। दोनों अपने ब्लड को राइट ऑरिकल में डालेंगे। राइट ऑरिकल जैसे ही फुल होगा राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने पे द ब्लड विल गो इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब पूरा फिल हो जाता है तो राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रॉम हेयर द ब्लड विल गो इनटू दिस आर्टरी which is called as the pulmonary artery. Pulmonary artery will carry the blood to the lungs. जहाँ respiration की process से जो lungs हैं they will be the respiration की वजह से में जो lungs हैं वो इस deoxygenated blood को oxygenate करेंगे और फिर lungs में जब blood oxygenate हो जाता है तो वहाँ से blood oxygenated blood है that is brought into the lungs with the help of the another two vessels, and these two vessels they are called as the pulmonary vein. Why are they called veins? Because they are bringing blood towards the heart. तो ये आपकी this is a pink color but I did not, don't mind the color, just go for the color scheme, reddish color लेके चलिए। So ये जो आपकी pulmonary veins हैं they will bring the oxygenated blood from the lungs and they will pour it into the heart. तो आपका ये जो हिस्सा हार्ट का है this is filled with oxygenated blood, या जो आपका रेड टोन का ब्लड होता है ये उसके साथ में फिल होती है, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट सॉरी इज फिल्ड विद द oxygenated blood. So now same thing is going to happen. Pulmonary vein will bring the blood to left auricle. Left auricle जो है जब वो fill हो जाएगा then it will contract. Blood will come from left auricle into the left ventricle.
from the left ventricle, the blood, when the left ventricle becomes full, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड विल गो इनटू अनदर वेसल, and this vessel will come out from the heart like this, and this vessel is called as the aorta. ये वेसल हार्ट की, ये हमारी बॉडी की सबसे थिक, सबसे ज़्यादा मोटी वेसल होती है, एंड दिस वेसल इज़ कॉल्ड एज द एओटा. और एओटा जो है वो पूरे की पूरी बॉडी के अंदर बाय डिफरेंट ब्रांचेस विल सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो यू हैव सीन कि जो आपका पल्मोनरी वेन्स हैं, दे विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the heart into the left auricle. In the left auricle, when left auricle becomes full, then blood will go into the left ventricle. When left ventricle contracts, तो यहाँ से जो blood है it will go into this vessel, and this vessel is called as the aorta. और इस vessel को guard कर रहा है जी आपका, यहाँ tricuspid valve था, यहाँ पर BCV है which is called as bicuspid valve. So this is the flow of blood in the heart. और अब क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर हार्ट बहुत प्रेशर से पंप होना है, क्योंकि एक तरफ से इट हैज़ टू गो ऑल द वे टू द लंग्स और दूसरी तरफ से इट हैज़ टू गो ऑल द वे टू द बॉडी, तो इसीलिए यहाँ पर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो ज़्यादा होता है ताकि वो प्रेशर को झेल सके और जो ब्लड की जो हार्ट की वॉल्स हैं वो कोलैप्स, वो बर्स्ट ना कर जाए. तो यहाँ पर हाई प्रेशर को बैलेंस करने के लिए वॉल्स थिक होती हैं और यहाँ लो प्रेशर होता है तो यहाँ पर वॉल्स को थिन ही रखा जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक डायग्राम ऑफ योर हार्ट, एंड दिस डायग्राम also explains you the working. You should know right auricle, left ventricle. और इस तरीके से आपको अगर वर्किंग ऑफ हार्ट पूछी जाती है तो वर्किंग ऑफ हार्ट को आप लोगों ने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है और पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट्स के साथ में एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद द राइट ऑरिकल, हेडिंग देनी है राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल में कहाँ से ब्लड आता है, कौन लाता है, क्या होता है. फिर राइट वेंट्रिकल, फिर आपने ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व के बारे में बताना है कि वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं. और कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कौन से सेक्शन में होता है, राइट सेक्शन में होता है या लेफ्ट सेक्शन के बीच में होता है. और फिर आपको ये वाली वेन, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ जाती है, फिर ब्लड को क्या होता है, ब्लड डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट होता है लंग्स के अंदर जब हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को. Then the oxygenated blood is brought to the lungs with the help of pulmonary veins. These pulmonary veins will pour the blood into left auricle. The left auricle then contracts, the blood comes into the left ventricle. और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पूरा भर जाता है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड गोज इनटू अनदर वेसल विच इज कॉल्ड एज द एओटा. देन एओटा इट डिस्ट्रीब्यूट्स द ब्लड टू द होल बॉडी विद द हेल्प ऑफ सर्टन ब्रांचेस. ये ऊपर की ब्रांचेस ऊपर जाएंगी आपकी बॉडी में और जो बाकी ब्रांचेस है वो नीचे की तरफ आती है. सो इस तरीके से दिस इज़ द वर्किंग ऑफ हार्ट एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द हार्ट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज और वेन्स में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, हार्ट का वर्किंग आना चाहिए, हार्ट का डायग्राम आना चाहिए. अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ब्लड वेसल्स. तो अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो हमने आर्टरीज और वेन्स कर लिया, सॉरी अब हमने करना है ब्लड का composition. So every one of you is well aware with the composition of blood. You have done it in 9th class. Blood is made up of two sections. One is called as plasma and the others are called as the corpuscles. The corpuscles are of three types: red blood cells, WBCs and platelets. Red blood cells, WBCs and platelets. The red blood cells, they are called as erythrocytes because they are red in color, and they are red in color because they have a red colored pigment in them which is called as the hemoglobin. The hemoglobin binds with the oxygen present in the blood to form an oxyhemoglobin complex. This oxyhemoglobin complex
carries the oxygen to different parts of the body. Then next we have WBCs, which are called as leukocytes because they do not have any colored pigment in them. They have different shapes and they have the capability of changing their shapes according to the parasite on which they are going to attack or the pathogen that is on which they are going to attack. They are basically involved in the defense mechanism of the body. They help us in fighting off the different diseases by killing the different microorganisms which attack our body. They also provide us immunity. And then we have lastly the platelets. The platelets, they are called as thrombocytes. They help in blood clotting with the help of a special protein which is present in them, which is called as thrombin. And during the injury or a cut, when the blood is oozing out, they form a type of mesh or a net in front of the wound and stops the excessive blood loss. And then we have the second component or the liquid component of this connective tissue, which is called as plasma. The plasma contains all the dissolved materials in it, like the oxygen, carbon dioxide, different hormones, different nutrients, glucose, etc., etc. Then we come on to another component of connective system or circulatory system, which is lymph. Lymph is very popularly called as the middleman between the blood and the cells because it is a very common perception that it is the blood which carries everything like nutrients, like glucose, oxygen to the cells, but actually it is not so, because blood flows in the blood vessels and blood vessels they terminate into blood capillaries. That each and every capillary does not go and feed each and every cell. हर सेल के लिए अलग से कैपिलरी नहीं होती है. होता क्या है कि सेल्स जहाँ टिश्यू होता है उससे पहले जो कैपिलरी है वो ख़त्म हो जाती है और कैपिलरी के एंड के अंदर थोड़ी सी स्पेसेस होती हैं जिसमें से जो प्लाज्मा का लिक्विड पार्ट है along with the dissolved nutrients, hormones, oxygen, etc., goes out of the blood vessels. The red blood cells, they do not go out, they remain inside the blood vessels. अब होता ये है कि these nutrients and the dissolved material in ये जिस लिक्विड के अंदर होते हैं उस लिक्विड को हम एक्स्ट्रा टिश्यू लिक्विड बोलते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड बोलते हैं. ये लिक्विड को हम लिम्फ बोलते हैं और ये लिम्फ के अंदर एक स्पेशल तरीके के सेल्स और पाए जाते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. लिम्फोसाइट्स जो हैं वो लिम्फ नोड्स में बनते हैं और लिम्फोसाइट्स भी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी और हमारी बॉडी को फॉरेन पैथोजन से डिफेंड करने में मदद करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड एंड lymph. Then we move on to the double circulation. Double circulation is a very important topic. Double circulation basically means कि when the blood goes through the heart twice in one circulation, this is called as double circulation. Because double circulation में क्या होता है कि हार्ट एक बारी जब एओर्टा से बॉडी के अंदर गया, एओर्टा से वो पूरे टिश्यूज़ में जाएगा या सेल्स में जाएगा, वहाँ से वो डीऑक्सीजनेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिच होकर लोअर वीना कावा से वो आपके हार्ट के अंदर वापस आ रहा है. लेकिन अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहले ब्लड यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद ब्लड वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से वो लंग्स में चला गया. सो एक बारी ये हार्ट के अंदर इस सर्कुलेशन में एंटर किया और फिर वो लंग्स में चला गया. अब लंग्स के से वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट में आ रहा है. तो अभी सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सर्कुलेशन आपका इस तरीके से कंप्लीट होना है. तो एक सर्कुलेशन में पहले हार्ट ने एंटर किया डीऑक्सीजनेट होकर, फिर ऑक्सीजनेट होकर वो ब्लड के जो है वो हार्ट के अंदर आया. तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट में दो बारी हार्ट के अंदर एंटर करता है एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. एक सेगमेंट सर्कुलेशन की ये है, दिस इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक ये जो सेगमेंट है दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो ये दो तरीके के सर्कुलेशन है, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, from heart to lungs and back to the heart, this is called as the pulmonary circulation.
And the double circulation plays a very important role in our body by maintaining the temperature of the body, because जो हमारा डबल सर्कुलेशन है उससे क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग रहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाई, जिसकी वजह से द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी can be easily produced with the help of oxygen that is there in the blood. तो ऑक्सीजन है उसकी वजह से हमें एनर्जी भी अच्छी खासी मिल जाती है और उससे क्या होता है हमारी बॉडी में हीट निकलती है, बिकॉज रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट निकलती है जिससे हमारा जो बॉडी है वो गर्म रहती है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए, जैसा कि रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर या फिशेस के अंदर होता है, क्योंकि उनके अंदर एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल या दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग नहीं रह सकता। हमारे केस में अगर हम देखें तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सेक्शन में है और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस सेक्शन में है। द डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एट ऑल एट एनी टाइम इन आवर बॉडी। तो बट जो तुम्हारे रेप्टाइल्स होते हैं या जो तुम्हारा एम्फीबियंस हैं या फिशेस हैं, उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कंबाइन कर जाते हैं। जब तो सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ डिजॉल्व्ड इन डबल अमाउंट ऑफ ब्लड, मतलब क्योंकि ऑक्सीजनेटेड भी डीऑक्सीजनेटेड में जाके मिल गया, तो डीऑक्सीजनेटेड अगर 2 लीटर है और ऑक्सीजनेटेड अगर 2 लीटर है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज इन 4 लीटर ऑफ वाटर, जबकि ह्यूमंस के अंदर वही ऑक्सीजन 2 लीटर ऑफ ब्लड के अंदर है। तो 2 लीटर ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन पर यूनिट ऑफ ब्लड इज लेस इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है तो उसकी वजह से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द respiration is less energy is produced, less heat is produced and hence the body does not keep very warm। इसीलिए जो सर्दियों के दिन होते हैं, जो भी तुम्हारे रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में जाने से क्या होता है कि जब वो सो जाते हैं तो उनकी बॉडी एक्टिविटी जो होती है वो स्लो हो जाती है, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो जितनी भी ऑक्सीजन उनकी बॉडी में है दैट इज़ सफिशिएंट टू कीप देम वार्म। अदरवाइज अगर वो विंटर सीजन में एक्टिव रहेंगे तो उनकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल है नहीं जो कि उनकी बॉडी में वो एनर्जी सप्लाई कर सके और हीट लिबरेट कर सके। सो दिस इज़ द रीज़न वाई डबल सर्कुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, बिकॉज डबल सर्कुलेशन की वजह से हमारी बॉडी वार्म रहती है और हमें जो ऑक्सीजन है वो भी एक एडिक्वेट अमाउंट में मिलती रहती है। और इसका दूसरा ये है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कभी भी मिलता नहीं है। Next topic is blood pressure. Blood pressure is the amount of pressure which develops in the blood due to its movement in the arteries and the veins. अब अगर हम ध्यान से सोचें तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो एक तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो हार्ट जो है वो एक प्रेशर के साथ में एओर्टा में जाएगा, क्योंकि अगर प्रेशर के साथ वो एओर्टा में नहीं जाएगा तो वो पूरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर कम प्रेशर के साथ में जाएगा तो वहाँ पर आपकी लास्ट टो के नेल तक जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ तक ब्लड उतने प्रेशर से नहीं जा पाएगा। तो इसलिए जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रेशर होता है वो हमेशा हाई होता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर होता है या कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को हम सिस्टोल बोलते हैं, एंड द प्रेशर डेवलप्ड इन द ब्लड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 120 मिलीमीटर मर्करी। एंड जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम पे ब्लड के अंदर प्रेशर थोड़ा सा फॉल करता है, और जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है उस प्रोसेस को हम डायस्टोल बोलते हैं। एंड प्रेशर ऑफ ब्लड ड्यूरिंग अ डायस्टोल इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर, एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज़ 80 मिलीमीटर मर्करी। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल जो है वो एक ब्लड की जो हार्ट बीट है उसको वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो आपको जो हार्ट बीट की आवाज़ या आपकी पल्स की आवाज़ आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डायस्टोल एंड सिस्टोल, और the pressure developed during diastole and systole is called as diastolic and systolic pressure. Systole is higher end of the blood pressure which is 120 millimeter mercury, and diastole is the lower end of the blood pressure which is your 80 millimeter mercury. And the machine which is used to measure the blood pressure is called as sphygmomanometer. This device is very common and you people have seen it, and
It tells us about the higher level and the lower level of the blood pressure. Lastly, we move on to the transportation in plants. Transportation in plants is studied under two sections: transportation of water and transportation of food. Transportation of food is called as translocation, and translocation is conducted by the phloem vessels of the plant, which you have studied about in 9th class. Now phloem vessels जो होती हैं, जो खाना बनता है वो डिफ्यूज़ कर जाता है from high concentration to low concentration. Food is made in the green parts of the plant and from there it is diffused or sent to the other parts of the plant. एंड जो तुम्हारा ट्रांसलोकेशन होता है ये दोनों तरीके से होता है, मतलब ऊपर से नीचे भी होता है और नीचे से ऊपर भी ट्रांसलोकेशन होती है. लेकिन अब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स, एंड जाइलम वेसल्स जो हैं वो पानी को एक जगह से रूट से पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम कर रही हैं. अब हमें एक बात ध्यान से रखना चाहिए कि जब पानी रूट से लेकर ऊपर तक जा रहा है तो वह एंटी ग्रेविटेशनल पुल जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है. तो जिससे उसको ऊपर पहुंचाने के लिए हमें एक फोर्सफुली उसको पंपिंग करनी पड़ेगी या किसी प्रकार का पुल होना चाहिए जो कि उसको अपनी तरफ खींचे. अब प्लांट के अंदर ऐसा कोई भी हार्ट जैसा ऑर्गन नहीं है जो कि पंप करे और जो वाटर है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए. इसके लिए नेचर ने लीव्स के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाया है विच इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज़ लॉस ऑफ वाटर, एंड लॉस ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है कि जब लीव्स के जो सेल्स हैं जब उनके अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है, दे विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सेल्स विच आर इन द पिट्यूल. The petiole cells, they will start absorbing water from that of stem. The stem cells, when they give water to the petiole, they will then, उनको भी तो पानी चाहिए तो वो पानी अपना मेन ब्रांच से लेंगे. मेन ब्रांच जो है वो ट्रंक, जो मेन टहनी है पौधे का जो मेन है उसमें से वो लेंगे, और जो ट्रंक है वो रूट से लेगी. जो रूट है वो रूट हेयर से लेंगे. तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके का सक्शन प्रेशर बनता है, एक तरीके का पुल बनता है. जैसे कि अगर आप स्ट्रॉ में से कोल्ड ड्रिंक को ऊपर को सक करते हो तो आप ऊपर से एक पुल लगाते हो, एक प्रेशर लगाते हो जिससे कि पानी जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू होता है या कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ना शुरू होती है. यही जो प्रेशर है जो आप सक करके दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज द सक्शन प्रेशर, एंड दिस सक्शन प्रेशर इज मेड बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल भी बोलते हैं. ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर कम्स अंडर टेंशन and it is pulled toward from the roots towards the various parts of the plant, and this tension is called as the tugger pressure. और tugger pressure की वजह से suction pressure develop होता है. suction pressure की वजह से there is movement of water from the root hair to the different parts of the plant. एक और चीज़ है ये प्रोसेस जिससे कि जो तुम्हारे minerals और जो water हैं they are moved from roots to the different parts of the plant. This is called as ascent of sap. Sap is a mixture of minerals and the water. Ascent का मतलब होता है rise. तो जो आपकी movement होती है from roots to the different parts of the plant, this is called as the ascent of sap. So this is all about that has to be covered in the topic of transportation. In the next lecture we will be doing excretion, and in excretion we will be studying about the kidneys. Thank you.